वेलकम इन अनदर वीडियो ऑफ ITSM स्टूडेंट। लास्ट लेक्चर में हमने क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर एंड रिस्क रिगार्डिंग द सर्विस ट्रांजिशन का स्टडी किया था। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम यूनिट 4 स्टार्ट करेंगे, जिसमें ए पार्ट जो है वो सर्विस ऑपरेशन, तो उसका हम डिटेल स्टडी करेंगे। तो शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। So part A of unit 4 is the service operation. So in that first we'll study the what is meant by service operation and scope of the this service operation. So information technology infrastructure library, in short it is called as ITIL, is the service operation describe the best practice for managing the services in the supported environment. ठीक है, तो यहाँ पे जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंफ्रास्ट्रक्चर लाइब्रेरी है, ये एक सर्विस ऑपरेशन है जो कि डिस्क्राइब करता है या मैनेज करता है सर्विसेज को जो कि सपोर्टेड एनवायरनमेंट में है। सो इट इंक्लूड्स द गाइडेंस ऑन अचीविंग द इफेक्टिवनेस एंड इफिशिएंसी इन द डिलीवरी एंड सपोर्ट ऑफ सर्विस। ठीक है, तो इस सर्विस ऑपरेशन में जो इंक्लूडेड है वो गाइडेंस है रिगार्डिंग द इफेक्टिवनेस एंड इफिशिएंसी ऑफ द सर्विस इन डिलीवरी एंड सपोर्ट फॉर द सर्विसेज टू इंश्योर द वैल्यू फॉर द कस्टमर। ठीक है, तो इसमें जो गाइडेंस है सर्विस ऑपरेशन में इफ़िशियंसी इंक्रीज़ करने के लिए सर्विस का या इफ़ेक्टिवनेस इंक्रीज़ करने के लिए। ठीक है, आल्सो एट द टाइम ऑफ डिलीवरी एंड इट विल सपोर्ट द वैल्यू ऑफ द कस्टमर, द यूज़र एंड द सर्विस प्रोवाइडर. So strategic objective are ultimately realized through the service operation, therefore making it a critical capability. So ITL service operation provides the guidance on how maintain stability in the service operation. So also in allowing for changes in design, scale and scope of service levels. So here organizations are provided with the detailed process guidelines, methods and tools for the use in two major control perspective, that is reactive and proactive. तो यहाँ पे जो ऑर्गेनाइजेशन है उनको जो डिटेल गाइडलाइंस है फॉर प्रोसेस ऑफ दिस strategies, objectives and the service operations are provided, and the methods adapting for the and also the tools used for this strategic process are the major projectives, or the reactive and proactiveness are also the perspectives of the organization. So managers and practitioners are provided with the knowledge allowing them to make the better decision in the areas such as managing the availability of service, controlling demand, optimizing the capacity utilization, scheduling of operation and avoiding or resolving the service incident and managing the problem. So new models and architecture such as shared service, utility computing, web services and mobile commerce to support the service operation are डिस्क्राइब. ठीक है, तो यहाँ पे जो न्यू मॉडल्स एंड आर्किटेक्चर है फॉर द सर्विस, तो उसमें इंक्लूडेड रहेगा शेयर सर्विसेज. ठीक है, यूटिलिटी कंप्यूटिंग, देन वेब सर्विसेज एंड जो मोबाइल कॉमर्स है. ठीक है, सो ऑल दीज ऑपरेशंस आर सपोर्टेड इन दिस सर्विस ऑपरेशन. So this ITIL service operation describes the process, function, organization and tools used to underpin the ongoing activities required to deliver and support the services. Then we'll see the scope that are included in the service operation. So here in this figure the scope of service operation is given. So at the center there is a service operation scope. ठीक है, तो स्कोप में जो फर्स्ट होगा द सर्विसेज, सेकंड स्कोप जो है सर्विस मैनेजमेंट प्रोसेसेस, थर्ड स्कोप होगा टेक्नोलॉजी एंड फोर्थ स्कोप इज़ द पीपल. ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पे सर्विस ऑपरेशन के जो है टोटल 4 जो है स्कोप्स है. ठीक है, द सर्विसेज, सर्विस मैनेजमेंट प्रोसेस, टेक्नोलॉजी एंड पीपल्स. Then we'll see this scope in detail one by one. So first scope is the services. The activities that form the part of service are included in the service operation. ठीक है, तो यहाँ पे जो एक्टिविटीज़ है सर्विसेज की, ठीक है, जो कि एक पार्ट है सर्विस ऑपरेशन का, सो दैट इज़ द स्कोप ऑफ द सर्विस. सेकंड स्कोप जो सर्विस मैनेजमेंट प्रोसेस का है, द ऑनगोइंग मैनेजमेंट एंड
एग्जीक्यूशन ऑफ मेनी सर्विस मैनेजमेंट प्रोसेस आर परफॉर्म इन द सर्विस ऑपरेशन। तो सर्विस मैनेजमेंट प्रोसेसेस में जो ऑनगोइंग मैनेजमेंट होगा रिगार्डिंग द सर्विसेज and for the different service management process, so that has to be included or performed in this service operation. Third scope is the technology use. So all service require some form of technology in order to deliver them. ठीक है, तो जो भी सर्विस हम इम्प्लीमेंट करेंगे बिजनेसेस के लिए, so that requires a technology and managing this technology is a integral part of management. एंड इस टेक्नोलॉजी को मैनेज करने का जो पार्ट होगा ये एक इंटीग्रल पार्ट होगा मैनेजमेंट का। फोर्थ स्कोप इज़ द पीपल। पीपल आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ द सर्विस ऑपरेशन। तो यहाँ पे जो पीपल है एक मेन एस्पेक्ट है सर्विस ऑपरेशन का, बिकॉज पीपल ड्राइव द डिमांड फॉर द प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज। ठीक है, तो यहाँ पे जो पीपल्स है वो कस्टमर्स है एक्चुअली या यूजर्स है सर्विस या प्रोडक्ट्स के कंपनी के लिए। सो पीपल आर द डिसीजन मेकर। ठीक है, तो जो डिसीजन मेकर्स है वो यहाँ पे पीपल्स है। सो इट इज़ द पीपल हु मैनेज द टेक्नोलॉजी प्रोसेस एंड सर्विसेज। ठीक है, तो यहाँ पे जो पीपल्स है वही टेक्नोलॉजी एंड प्रोसेस एंड सर्विसेज को इन शॉर्ट मैनेज कर रहे हैं। ओके, सो दीज आर द मेन 4 स्कोप ऑफ द सर्विस प्रोसेस। Then we'll see the service operation. रिड्यूस द अनप्लान लेबर एंड कॉस्ट फॉर बोथ बिजनेस एंड आईटी। ठीक है, तो यहाँ पे सर्विस ऑपरेशन जो है वो अनप्लान लेबरिंग को कम करता है। ठीक है, एंड जो कॉस्ट है बिजनेस एंड आईटी के लिए, ठीक है, तो उसको भी यहाँ पे रिड्यूस करने का वर्क करता है। सेकंड, रिड्यूस द ड्यूरेशन एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ सर्विस आउटेज। ठीक है, तो जो भी सर्विसेज मेंटेनेंस में होगा, ठीक है, मेंटेनेंस में होगा, तो उसका जो ड्यूरेशन एंड फ्रीक्वेंसी उसको रिड्यूस करने का वर्क यहाँ पे सर्विस ऑपरेशन करेगा। थर्ड, इट प्रोवाइड द ऑपरेशनल रिजल्ट्स एंड डेटा। ठीक है, तो जो भी ऑपरेशनल रिजल्ट्स है एंड डेटा है उसको प्रोवाइड करने के लिए सर्विस ऑपरेशन जो है वो नेसेसरी है। मीट द गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन सिक्योरिटी पॉलिसी। तो ऑर्गेनाइजेशन का जो सिक्योरिटी पॉलिसी है, ठीक है, उसके जो गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव इनको अचीव करने के लिए सर्विस ऑपरेशन हेल्प करेगा। प्रोवाइड द क्विक एंड इफेक्टिव एक्सेस टू द स्टैंडर्ड सर्विसेज। तो जो भी स्टैंडर्ड सर्विसेज है, ठीक है, तो इनके लिए क्विक एंड इफेक्टिव एक्सेस प्रोवाइड करने का वर्क यहाँ पे सर्विस ऑपरेशन करेगा। ऑल्सो प्रोवाइड द बेसिस ऑफ ऑटोमेटेड ऑपरेशन। तो जो भी ऑपरेशंस है वो उसको ऑटोमेटेड तरीके से यहाँ पे परफॉर्म किया जाएगा सर्विस ऑपरेशन में। सो दीज आर द डिफरेंट थिंग्स दैट कैन बी डू विद द सर्विस ऑपरेशन। Then next topic of syllabus is the fundamentals, that is service operation fundamentals। ठीक है, तो यहाँ पे सर्विस ऑपरेशन के जो फंडामेंटल्स है उसको हमें डिटेल स्टडी करना है इस सेक्शन के अंदर। सो द फंडामेंटल एस्पेक्ट्स ऑफ सर्विस ऑपरेशन आर पर्पस, गोल एंड ऑब्जेक्टिव। ठीक है, तो सबसे पहले हम जो पर्पस है, गोल एंड ऑब्जेक्टिव है सर्विस फंडामेंटल्स का या सर्विस ऑपरेशन का, तो उसको हम स्टडी करेंगे। सो द पर्पस ऑफ सर्विस ऑपरेशन इज़ टू प्रोवाइड द values to business. सर्विस ऑपरेशन शुड फोकस ऑन ओवरकमिंग द चैलेंजेस। ठीक है, तो जो पर्पज़ है सर्विस ऑपरेशन का वो प्रोवाइड करना है वैल्यूज़ बिजनेस को, एंड जो मेन फोकस होगा सर्विस ऑपरेशन का दैट इज़ फॉर ओवरकमिंग द चैलेंजेस। तो जो भी चैलेंजेस या रिस्क इन्वॉल्व होगा सर्विस ऑपरेशन में, ठीक है, तो उसको ओवरकम करने के लिए हम यहाँ पे सर्विस ऑपरेशन का यूज़ करेंगे। So it is easy to quantify the cost of project but difficult to quantify what the service will cost for the 3 years. So well designed and well implemented process will be of little value if the day to day operation of those process is not properly conducted, controlled and managed। ठीक है, तो यहाँ पे जो well designed and well implemented process है सर्विसेज के, ठीक है, so that provide the properly conduction and controlling and manage environment for the operations, so the service improvements be possible if day-to-day activities are to be monitored and performance are accessed. Then we'll see the scope
of service operation. Service operation includes the execution of all ongoing activities required to deliver the and support the service. ठीक है, तो सर्विस ऑपरेशन में जो है वो अलग अलग एक्टिविटीज़ इंक्लूड्स रहेंगे. ठीक है, फॉर द डिलीवरी एंड सपोर्ट ऑफ द सर्विस. सो द स्कोप ऑफ सर्विस ऑपरेशन इंक्लूड, तो यहाँ पे जो स्कोप है सर्विस ऑपरेशन का उसमें फर्स्ट है द सर्विसेज देमसेल्फ. तो जो सर्विसेज होंगे, ठीक है, सो ये सब स्कोप के अंडर यहाँ पे डिनोट होंगे. एनी एक्टिविटी दैट इज़ परफॉर्म बाय द सर्विस प्रोवाइडर, external supplier or the user or customer forms are the part of the service and that includes the service operation. तो जो एक्टिविटी परफॉर्म हो गए बाय सर्विस प्रोवाइडर एंड एक्सटर्नल सप्लायर्स एंड यूज़र एंड कस्टमर से, ठीक है, सो दैट इज़ अ पार्ट ऑफ सर्विस एंड दैट एक्टिविटी इज इंक्लूडेड इन द सर्विस ऑपरेशन. सेकंड स्कोप सर्विस मैनेजमेंट प्रोसेस. तो जो ऑनगोइंग मैनेजमेंट होगा एंड एग्जीक्यूशन होगा of many service management process are performed in service operation. तो सर्विस ऑपरेशन में जो ऑनगोइंग मैनेजमेंट एंड एग्जीक्यूशन होगा अलग अलग सर्विसेज का. ठीक है, सो इवन दो दिस ऑपरेशन में भी प्रेजेंट एट एंड स्टेज ऑफ सर्विस लाइफ साइकिल. तो ये सारे जो ऑपरेशंस होंगे ये सर्विस लाइफ साइकिल के अंडर होंगे. सो दैट इज़ द सेकंड स्कोप. थर्ड स्कोप इज़ द टेक्नोलॉजी. Some or the different type of technologies are used to deliver the different types of services. ठीक है, तो अलग अलग टेक्नोलॉजीज़ यहाँ पे अलग अलग सर्विसेज के लिए हम यूज़ कर सकते हैं. सो मैनेजिंग दिस टेक्नोलॉजी इज़ द इंटीग्रल पार्ट ऑफ मैनेजमेंट. तो इस टेक्नोलॉजी को किस तरह से हम इफिशिएंटली मैनेज कर सकते हैं और यूटिलाइज कर सकते हैं सर्विसेज में, ये इंटीग्रल पार्ट है मैनेजमेंट का. सो देयरफॉर अ लार्ज पार्ट ऑफ दिस पब्लिकेशन इज कंसर्न विद द मैनेजमेंट ऑफ infrastructure used to deliver the services. And the fourth scope is again the people. The most important that manages the different types of services, process and technology are the peoples. So these are the main scope of the services. Then next is the value to business. So each stage in ITIL service lifestyle provide the value to business. For example, service value is model in service strategy model, service value. Second, service design and service transition predicts and validates the cost of the service. तो यहाँ पे जो सर्विस डिज़ाइन है एंड सर्विस ट्रांजिशन है, ठीक है, सो इनका यूज़ करके हम यहाँ पे जो कॉस्टिंग है सर्विसेज का उसे हम यहाँ पे कैलकुलेट कर सकते हैं. कंटिन्यूअल सर्विस इम्प्रूवमेंट आइडेंटिफाइज द मेजर फॉर ऑप्टिमाइजेशन. ठीक है, तो यहाँ पे जो कंटिन्यूअस इम्प्रूवमेंट होगा सर्विस में, तो उसका हेल्प लेके हम जो अलग अलग सर्विसेज उसको ऑप्टिमाइज कर सकते हैं. द ऑपरेशन ऑफ द सर्विसेज वेयर द प्लान्स डिसीजन ऑप्टिमाइजेशंस आर एग्जीक्यूटेड एंड मेजर. तो जो भी ऑपरेशन है सर्विस के, ठीक है, तो उसको हम प्लान कर सकते हैं, डिज़ाइन कर सकते हैं, ऑप्टिमाइज कर सकते हैं, ठीक है, एंड एग्जीक्यूट एंड मेजर कर सकते हैं. सो ऑल्सो कस्टमर पॉइंट ऑफ व्यू द सर्विस ऑपरेशन इज़ वेयर एक्चुअल वैल्यू इज सीन. ठीक है, तो कस्टमर पॉइंट ऑफ व्यू से जो एक्चुअल ऑपरेशंस परफॉर्म हो रहे हैं सर्विसेज में, दैट कैन बी अ सीन प्रैक्टिकली. देन द नेक्स्ट टॉपिक इज ऑप्टिमाइज सर्विस ऑपरेशन परफॉर्मेंस. तो सर्विस ऑपरेशन इज ऑप्टिमाइज इन टू वेज. ठीक है, तो यहाँ पे जो सर्विस ऑपरेशन है उसको हम ऑप्टिमाइज कर सकते हैं दो तरीके से. फर्स्ट जो है लॉन्ग टर्म ऑप्टिमाइजेशन है, सेकंड जो है शॉर्ट टर्म ऑप्टिमाइजेशन है. लॉन्ग टर्म ऑप्टिमाइजेशन इज़ द इंक्रीमेंटल इम्प्रूवमेंट बेस्ड ऑन द डिफरेंट सर्विस ऑपरेशन प्रोसेस फंक्शन एंड द आउटपुट्स ओवर द टाइम. ठीक है, तो यहाँ पे जो लॉन्ग टर्म इंक्रीमेंटल इम्प्रूवमेंट्स है दैट इज़ फॉर सर्विस ऑपरेशन प्रोसेस, जो कि फंक्शंस एंड आउटपुट्स, ठीक है, सो दैट विल डिपेंड ऑन द टाइम. सो दैट टाइम विल बी अ लॉन्गर टर्म. सेकंड इज द शॉर्ट टर्म ongoing improvements or implementation of the service process and that processes the function and technologies. ठीक है, तो इसमें जो टाइम ड्यूरेशन होगा, सो दैट टाइम ड्यूरेशन इज़ अ वेरी शॉर्ट. सो दैट इज़ द शॉर्ट टर्म optimization of the service performance.
देन विल सी द प्रोसेसेस फॉर सर्विस मैनेजमेंट। ठीक है, तो सर्विस मैनेजमेंट में क्या क्या प्रोसेसेस इंक्लूडेड है उसका हमें डिटेल स्टडी करना है। तो फर्स्ट जो प्रोसेस है सर्विस मैनेजमेंट में वो है इवेंट मैनेजमेंट, हाउ वी कैन मैनेज द इवेंट्स दैट वी हैव टू सी। सेकंड, इंसिडेंट मैनेजमेंट प्रोसेस। थर्ड, प्रॉब्लम मैनेजमेंट प्रोसेस, and fourth one is the request fulfillment process, and fifth one is the access management. So these are the different processes for the service operation. So we'll see one by one in detail. So first जो है वो event management है। The objective of this process is to make sure that all configuration item और services are monitored constantly। ठीक है, तो जो मेन ऑब्जेक्टिव है इवेंट मैनेजमेंट का या प्रोसेस का, जिसमें जो कॉन्फ़िगरेशन आइटम्स है CI, ठीक है, एंड सर्विसेज, तो इनको कॉन्स्टेंटली मॉनिटर किया जाएगा, जिसमें फ़िल्टर्स एंड कैटेगरीज भी होंगी अलग अलग इवेंट्स के लिए, इन ऑर्डर टू डिसाइड एंड अप्रोप्रिएट एक्शन। तो अलग अलग एक्शन को यहाँ पे परफॉर्म करने के लिए या डिसाइड करने के लिए यहाँ पे फ़िल्टर्स एंड इवेंट्स फॉर्म होंगे इवेंट मैनेजमेंट प्रोसेस के अंडर। Second process is the incident management. So the purpose of incident management is to restore the service to the previous stage at the as early as possible। ठीक है, तो इंसिडेंट मैनेजमेंट का जो पर्पज़ है सर्विस को रिस्टोर करना है, ठीक है, प्रीवियस स्टेज में। ठीक है, तो जो प्रीवियस स्टेज में जो सर्विस जिस तरह से वर्क कर रहा था उसी स्टेज में उसको रिस्टोर करने का जो काम है, ठीक है, दैट इज़ एज अर्ली एज पॉसिबल। तो ये मैनेजमेंट जो है वो इंसिडेंट मैनेजमेंट प्रोसेस के अंडर आता है। ठीक है, नेक्स्ट जो है थर्ड, प्रोजेक्ट और प्रॉब्लम मैनेजमेंट। सो दिस प्रोसेस डील विद द फाइंडिंग द रूट कॉज ऑफ प्रॉब्लम एंड प्रिवेंट द इंसिडेंट टू ऑकर अगेन। ठीक है, तो प्रॉब्लम मैनेजमेंट जो प्रोसेस है, ठीक है, तो इसमें जो रूट कॉज है प्रॉब्लम का, ठीक है, तो प्रॉब्लम का जो बेसिक कॉज है, ठीक है, तो उसको फाइंड आउट करना है एंड उस कॉज को means again that cause cannot be happen, so that will be a prevent the incident. So this type of management will be in the this problem management. Fourth one is the request fulfillment. So this process deal with the handling requests such as change password, create new user and create email। ठीक है, तो रिक्वेस्ट फुलफिलमेंट जो है वो डील करता है अलग अलग रिक्वेस्ट जो है कस्टमर्स के उसको हैंडल करने का, तो जिसमें पासवर्ड चेंज है, न्यू यूज़र क्रिएट करना एंड क्रिएट ईमेल आईडी। तो ये सारे जो प्रोसेस है या रिक्वेस्ट है ये रिक्वेस्ट फुलफिलमेंट प्रोसेस के अंडर कंप्लीट होगा। ठीक है, एंड लास्ट वन इज़ द एक्सेस मैनेजमेंट। दिस प्रोसेस डील विद द ग्रांटिंग द राइट्स टू ऑथोराइज यूज़र टू यूज़ द सर्विस। ठीक है, तो एक्सेस मैनेजमेंट प्रोसेस में जो यूज़र्स है, ठीक है, सो दैट यूज़र्स आर ऑथोराइज यूज़र सो दैट दे कैन यूज़ द सर्विस। सो ग्रांटिंग द परमिशन टू देम इज़ द process under this access management. So these are the different processes of the service management. तो आज का ये वीडियो लेक्चर हम यही एंड करते हैं। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम सर्विस ऑपरेशन के जो फंक्शंस है उसका हम डिटेल स्टडी करेंगे। सो थैंक यू।